Okay. So, a very good morning to one and all present here, including the corporate personals, academicians, and students. So, today we are virtually connected to each other to listen to the eminent author and motivational guru, Raghunaman sir. Raghunaman sir and Nirmal sir, good morning to you. And Raghunaman sir is a postgraduate from Mumbai University and has an IIT. He is also known as the management guru, and he's a seasoned journalist and has immense experience of more than 30 years in leading national dailies like Indian Express, DNA, Dainik Bhaskar, etc. His immensely popular daily column, Management Funda, in all editions of Dainik Bhaskar has captured the fancy of the nation. The success of this column lies on the ease with which various issues are threaded together through diverse tales of ordinary people with extraordinary feats. Raghunaman sir is also an amazing motivational and inspirational speaker. Sir, on behalf of Institute of Rural Management, Jaipur, I welcome you to this particular seminar. I'm sure that the participants will benefit immensely from your session. Now I request Raghunaman sir to initiate with the session. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Very good morning, and thank you, Ms. John and Ms. Jessie John. It's wonderful to to be part of the orientation course of the Institute of Rural Management, Jaipur, and this is per se my first orientation course to the student in the last 4 months, because obviously the colleges have just begun, and I would have been in the mid of various college students by this time had the situation would have been normal. Since the coronavirus has taken its center stage, we are all connected, but connected through the system and connected through the technology. So I'm happy to be part of your institute in Jaipur, and I'm going to begin and say something absolutely different, because last night when I met a lot of industrialists, business planners, we were talking about how the things have changed and how we need to adapt ourselves to the changing situation of this country. But today I'm going to speak something very, very surprising thing, and probably it will surprise all of you. And I'm going to address straight all the students who are connected to this network of Institute of Rural Management in Jaipur. Hi students. As I said, I have been speaking to a lot of industrialists, businessmen, and doing a lot of webinars with them and saying that how the times have changed. But I'm going to speak to you guys. In last 16 hours, I have decided to speak a different language to you. And that different language is nothing has changed and nothing will change. I repeat, nothing has changed, nothing will change. And you may be surprised कि जब पूरी दुनिया आपको ये कह रही है कि यार सब कुछ बदल गया है, कोरोना वायरस ने लफड़ा कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, तो मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं कि यार कुछ नहीं बदला आपकी जिंदगी में, आपको वही करना है जो करते आ रहे हो. तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये बात सुनकर, लेकिन मैं अपनी पॉइंट को प्रूव करने ले जा रहा हूं. आप पैदा हो गए, आप और मैं पैदा हो गए, और हम सब मरने भी वाले हैं, ये निश्चित है. ये जो दो एक्सट्रीम एंड है लाइफ का, जब ये निश्चित है, बाकी सभी चीज तो प्रोबेबिलिटी थी ना. अगर हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छे घर खरीदेंगे या गाड़ी खरीदेंगे. प्रोबेबिलिटीज थी, ये सब प्रोबेबिलिटीज थी, याद रखिएगा. अब यही प्रोबेबिलिटी आपकी कॉलेज के पीजीडीएम स्टार्ट होने के बाद भी रहेगा. बहुत फैक्चुअल की बात कीजिएगा. Somebody is talking continuously. Can you unmute yourself? Somebody called 5A83EB22. I will appreciate if you can. Thank you. ये probability
ये प्रोबेबिलिटी आपके पास रहेगी, क्योंकि आप जब भी अच्छा करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, अच्छा नहीं करोगे तो आप हार का सामना करोगे। ये प्रोबेबिलिटी पहले भी थी, अभी भी रहेगी। आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले भी थी, अभी भी रहेगी। आपको एग्जाम पास होना पड़ेगा, वो पहले भी थी, अभी भी रहेगी। पहले मार्केट में पैसे नहीं होते थे, क्रेडिटर्स ज्यादा लोन नहीं मिलता था, क्रेडिटर्स लंबे दिन के लिए क्रेडिट नहीं देते थे, आज भी वही स्थिति है। पहले भी अनाप शनाप एडवर्टाइजमेंट आकर एक 8 साल का बच्चा कहता था माय पापा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, और वो बेचता क्या था? ऑयल बेचता था। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता था कि वो बच्चा बेच क्या रहा है, वो बच्चे को कैसे मालूम कि कौन सी ऑयल अच्छी है। ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते थे मार्केट में, और अभी भी आती रहेगी। तो सिचुएशन कुछ नहीं बदलने वाला है आपके लिए और मेरे लिए, खास तौर पे आपके लिए। हमारे लिए बदलेगा क्योंकि हम लोग एक प्रकार की जीवन शैली जीने की आदत लगा लिए थे। We have been used to live a certain standard of living, certain type of living. But आप लोग पीजीडीएम करने वाले वो छात्र लोग, जिनको 2 साल की सीख में, यानी कि आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट जयपुर की सीख में वो क्या सीखना चाहिए, वो क्या स्किल लेकर आपको जाना चाहिए, ताकि बदल बदल गई दुनिया के ऊपर आप वो चीजें सारी कर सकते हो। पहले एमबीए के कॉलेजेस में से स्टूडेंट निकलते थे, पीजीडीएम के स्कूल कॉलेज में से निकलते थे, मार्केट को ऑब्जर्व करते थे और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखकर अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन करते थे या मार्केटिंग करते थे। आज भी आपको वही करना पड़ेगा। जब यहां से 2 साल के बाद पास करके आप निकल के जाओगे, आपको वही कस्टमर को देखना पड़ेगा कि कस्टमर किस तरीके से वो काम कर रहा है, किस तरीके से किसी चीज को कंज्यूम कर रहा है और किस तरीके से वो हमारी चीज को खरीदेगा। ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा, और वही ऑब्जर्वेशन आपकी स्किल बनेगी, और वही ऑब्जर्वेशन पहले भी जरूरत थी और अभी भी जरूरत है। मुझे नहीं मालूम कितने कॉलेजेस इस ऑब्जर्वेशन स्किल को बच्चों के अंदर डालने की कोशिश करती है या नहीं करती है, लेकिन करना पड़ेगा। Unless we observe how our customers are behaving in the market, हमें नहीं मालूम पड़ेगा कि what we need to do in our life, how we need to sell our product। जिस तरह से सिर्फ 2 ही एंड मालूम है, जो आदमी पैदा हुआ वो आदमी मरेगा, ये 2 ही चीज कॉन्क्रीट है, और बाकी सारी चीज प्रोबेबिलिटी है। पूरी मार्केट प्रोबेबिलिटी पहले भी थी और अभी भी रहेगा। हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था मालूम है? वी वर वायर्ड रॉन्गली, वी वर वायर्ड रॉन्गली। हम हर चीज को नेगेटिव एस्पेक्ट में देखते थे। हमारे यहाँ नेगेटिव थॉट्स से पहला माइंड डेवलप होता है। यार, जब एक बच्चा पेड़ पे चढ़ता है तो माँ कहती है गिर जाओगे बेटा, संभालना। कभी ये नहीं कहते पकड़ के रहो, नहीं गिरोगे, कभी नहीं कहते गिर जाओगे। तो आपकी पढ़ाई में होती क्या थी? जी फॉर जेंटलमैन होता था, जी फॉर जेंटलमैन होता था। पहली फर्स्ट स्टैंडर्ड में ए बी सी डी जब आप पढ़ते हो, जी फॉर जेंटलमैन होता था। उस जी फॉर जेंटलमैन के सामने में फोटो क्या होती थी? एक आदमी सूट बूट पहना हुआ आदमी, वो जेंटलमैन था। अगर आप और हम में से कोई पूछोगे तो आज जो निर्मल सर हमारे सामने में खड़े हैं, उनको देखकर हम सब लोग जेंटलमैन बोलेंगे, क्योंकि वो टाई बांधे हुए हैं। हमारी नजरिया से बाकी कोई भी यहाँ पे जेंटलमैन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई टाई सूट नहीं पहना है। हो सकता है बाकी लोग पहने हो, जो पहना है टाई सूट वो, लेकिन जेंटलमैन का जो बेसिक कैरेक्टर को स्कूल में एक्सप्लेन करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमारी स्कूल चूक गई थी। जेंटलमैन का मतलब कपड़ा नहीं था, जेंटलमैन का मतलब कैरेक्टर था। उस कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने में हमारी स्कूल चूक गई थी। इसीलिए हम लोगों को ऑब्जर्व हमारे आंखों से करते हैं। किस तरीके से करते हैं? जिस कपड़े की उनकी जो स्टाइल है, उसको देखकर उनको हम जेंटलमैन का कैरेक्टर को उनके ऊपर डालते हैं। अब हमारी जो वायरिंग है वो बदलना पड़ेगा। हमारी जो वायरिंग थी पहले, वी वर वायर्ड रॉन्गली। हमारी सिचुएशन जो थी वो हर तरीके से डर और एंग्जाइटी, इन दोनों को निकालती थी।
हम कभी भी हमारे सॉल्यूशन को रिकॉग्नाइज करने में फेल होते थे। क्यों? डर पकड़ लेता था। उसकी वजह से होता क्या था, रिस्क नाम की जो एपिटाइट होनी चाहिए वो मर गया था। अब रिस्क लेने की जो क्षमता आपकी तभी बढ़ेगी जब आप अपनी सक्सेस को इमेजिन कर सकते हो, बैरियर्स को तोड़ सकते हो और सोच सकते हो कि मैं ऐसा कुछ करूंगा यार, कुछ नया चीज करूंगा जैसे मार्केट चाहता है। तो हमें रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है। नेगेटिव फीलिंग से निकलकर हमारी एटीट्यूड शार्पन होनी चाहिए उस प्रोफेशनल एरिया पे जहां पे अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म डायरेक्टिव विल नॉट वर्क, will not ask us to blind for a long term vision. याद रखिएगा, मार्क लेना शॉर्ट टर्म विजन है, कॉलेज के अंदर सीखना लॉन्ग टर्म विजन है। आप चाहते क्या है? मार्क लेकर उस सर्टिफिकेट को दीवार में लटकाना या हर टीचर के पास से उस नॉलेज को लेना जो जिंदगी भर हमें काम आएगा। हमारी जो पूरी इकोसिस्टम है उसको रिकैलिब्रेट करनी पड़ेगी। जैसे कोरोना ने हमें मजबूर कर दिया रिकैलिब्रेट करने का। क्या रिकैलिब्रेट करवाया? हम अनाप शनाप खरीदते थे, अनाप शनाप खाते थे। पिछले 4 महीने से हो क्या रहा है? जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही खा रहे हैं। एक इकोलॉजी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पेड़ पौधों की देखभाल कर रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, पोल्यूशन कम हो रहा है, रिकैलिब्रेट हो रहा है इकोलॉजी। याद रखिएगा इस बात को। उसी तरह हमारे कॉलेज के दिनों में हमें भी रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कितने दिन हम इस तरीके से कंप्यूटर में बात करेंगे, आई हैव नो क्लू। आपके टीचर्स भी शायद हो सकता है कि इस कंप्यूटर से ही बात करें। क्लासरूम टीचिंग प्रोबेबली और 2-3 महीने के लिए तो नहीं दिख रहा है। हो सकता है वो बढ़ भी जाए, हो सकता है वो जल्दी भी खत्म हो जाए, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, मैं ना नहीं कहता हूं, जो भी हो। लेकिन हमें आज तक कॉलेजेस का सिस्टम क्या था यार? कॉलेज मतलब वो भी पीजीडीएम, मतलब यार मजे करो, सीनियर्स है और अपने तरीके से कॉलेज जाओ, अपने तरीके से अटेंड करो, टीचर को अनाप शनाप क्वेश्चन पूछो। हम टीचर के पास वो नॉलेज है कि नहीं ये टेस्ट करने की क्वेश्चन पूछते थे। बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे साथ भी किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। लेकिन वो छोड़कर हमें वो क्वेश्चन पूछना चाहिए जो हमारे जिज्ञासा के साथ तैयार होती है। हमारी क्यूरियोसिटी उस फील्ड में क्या है वहां से तैयार होनी चाहिए। एंड दैट इज व्हाट रिकैलिब्रेशन इज ऑल अबाउट। कोई नया चाबी नहीं है, याद रखिएगा। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बेस स्टेशन बदल गया है। काम तो करना पड़ेगा बॉस। द प्रिंसिपल रिमेन द सेम। आपको इनोवेटिव रहना पड़ेगा, रिसोर्सफुल सॉल्यूशन देना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी। वो घर से करो या ऑफिस से करो, कुछ नहीं बदला। दैट इज द रीजन मैं कह रहा हूं कि नथिंग हैज चेंज्ड। पहले भी हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते थे, यार कल ले लेंगे डिसीजन, परसों मीटिंग लेकर ले लेंगे डिसीजन। आज भी हम वही कर रहे हैं। आज सारे स्टेक होल्डर्स जो है, जो शेयर होल्डर्स है, जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर है, मैनेजर है, सीएमडी है, जो भी स्टेक होल्डर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, आज भी मिल रहा है, स्क्रीन के माध्यम से मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है ना। तो क्या बदला भाई? हेलो, हैंडशेक नहीं हुआ, गले नहीं मिले, सामने सामने में आके हम लोगों ने बात नहीं की। मैं और मेरा कलीग निर्मल भटनागर और मैं तो रोज मिलते हैं, ऑन स्क्रीन मिलते हैं। वो इंदौर में रहता है, मैं बंबई में रहता हूं, हम दोनों पार्टनर्स हैं, हम दोनों रोज मिलते हैं। मिलना कहां बंद हुआ? फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ, याद रखिएगा इस बात को। माध्यम चेंज हुए हैं। अंग्रेजी बोलने के बदले में टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। अनम्यूट कर दो, म्यूट कर दो, ये सब नए लैंग्वेज आ गए हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बोलते थे यार निर्मल 2 मिनट रुकना, मैं बोलता हूं। अब एक नई भाषा आ गई, अनम्यूट सर, आपको अनम्यूट कीजिए सर। बस इतना ही बात है, बोलना तो चालू है। तो व्हाट हैज चेंज्ड? नथिंग हैज चेंज्ड। सबसे फायदेमंद चीज क्या है मालूम है आप लोगों के लिए?
आपकी फिल्टर आप चेंज कर लीजिए, आप अभी चेंज कर सकते हो, क्योंकि 2 साल बाद जब इस कॉलेज से आप बाहर निकलोगे, एक बदला हुआ दुनिया रहेगा, जो आपके लिए नहीं बदला, याद रखना। एक दुनिया जो अभी से बदलना शुरू हो गया है, वो वहां तैयार हो रहा है। हमें वहां जाकर काम करना है, हम सबको वहां जाके काम करना है। तो आपके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो गई ना, क्योंकि आपके टीचर आपको तैयार करते थे ओल्ड दुनिया के लिए, और बीच में कहीं कोरोना वायरस आता था तो आपकी तो बैंड बज जाती थी। आज तो अच्छा हो गया कि आपकी ओरिएंटेशन शुरू होने के पहले ही वहां पे दुनिया में तब्दीली बदलना शुरू हो गया। तो आपकी कोर्सेस, आपके टीचर, आपके लोग आपको नए सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार कर सकते हैं, नई कहानियां सुना सकते हैं, नए मार्केटिंग एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, नई चीजों को बता सकते हैं कि भाई रूरल मैनेजमेंट में भी, रूरल इंडिया में भी अर्बन की महक कैसे आ रही है, अर्बन की पैटर्न यूसेज कैसे आ रही है। ये सारी चीजों को आपको दिखाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या, आपकी जो फिल्टर थी, आपके सामने में जो फिल्टर लगाया था, उस फिल्टर को बदलना शुरू हो जाएगा। आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगे, आपके पास से एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, क्योंकि आप पहले ब्रीड रहोगे जो बदली हुई दुनिया में एक नया एमबीए बनकर निकलोगे या नया पीजीडीएम बन के निकलोगे। सो आपके लिए नथिंग हैज चेंज्ड, सो देयर इज नो नीड फॉर यू टू चेंज। आपको सिर्फ अपना काम करना है, जो करना है, यानी कि पहले जो ऑब्जर्व करते थे वही चीज आपको अभी भी ऑब्जर्व करनी है। आप पहले अलाइन करते थे, अभी आपको उसी तरह से अलाइन करना है, जिसको मैं रीअलाइनमेंट कह रहा हूं। आपको रीअलाइन करना पड़ेगा, आपके सीनियर तरीका अलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, नथिंग हैज चेंज्ड नाउ फॉर यू एंड नथिंग विल चेंज फॉर यू इन द फ्यूचर। सो आपको अभी अपने आप को रीअलाइन करना, रीसिंक करना, यही करना पड़ेगा। एक छोटी सी गीता की उपन्यास है, जिसमें कहा जाता है, वॉट एवर हैज हैपेंड वॉज गुड, वॉट एवर इज हैपनिंग इट इज फॉर गुड, इट इज गोइंग टू बी वेल, एंड वॉट एवर विल हैपन विल ऑल्सो बी गुड। यू नीड नॉट हैव एनी रिग्रेट ऑफ द पास्ट, क्योंकि आपके कॉलेज में आने के पहले ही दुनिया बदलने के लिए तैयार हो गया। आपका काम है लिव इन द प्रेजेंट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर। आप अभी जिए, इस जमाने पे जिए, बदलती हुई दुनिया को ऑब्जर्व कीजिए, और उनको क्या चाहिए उसको अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, तो आप अपने दिमाग से, अपने अपने आइडियाज से उनकी समस्याओं का समाधान निकाल पाओगे, एंड दैट विल बी योर सक्सेस गोल। मैं एक छोटी सी पीपीटी आपके साथ ले जाने वाला हूं, आपको आपको पीपीटी दिखाने वाला हूं। निर्मल, विल यू show it or should I start showing it? सर आपको करना रहेगा, यू हैव टू स्टार्ट। ओके, थैंक यू। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी शुरू कर रहा हूं। एक ये एक कहानी है, पुरानी, बहुत पुरानी कहानी है। एक लायन था जंगल में। अब लायन जंगल का राजा होता है, ये सबको मालूम है। अब वो जो लायन था, वो बार बार, कभी भी जब राजा होता है ना, आप अगर एक मैनेजर होते तो आप 2 लोगों को डांटते हो, 2 लोगों को इधर उधर ट्रांसफर करते हो, 2 लोगों को कुछ फाइल बनाकर उनके ऊपर कुछ उनके ऊपर नोट बनाते हो, क्योंकि आपको वो जो मैनेजर की जो पोजीशन है उसको बरकरार रखने के लिए आप ये सब करते रहते हो। उसी तरह लायन अपनी राजा की पोजीशन को बरकरार रखने के लिए आने जाने वाले छोटे मोटे सारे एनिमल को पूछते रहता है, ये जंगल का राजा कौन है? तो सब कहते हैं, बॉस आप हो। तो लायन खुश हो जाता है कि भाई चलो, अपने को तो बोल रहा है कोई, फाइन, ग्रेट। तो ऐसा पूछते 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 सब लोगों से गुजर रहा है वो, सब लोग बोलता है आप हो, आप हो, आप हो। तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा 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 करके ईगो में बदलना शुरू हो गया। जैसे जैसे ईगो में बदलना शुरू हुआ, सामने में से एक हाथी आया। हाथी को पूछा, हे राजा कौन है? हाथी ने कुछ नहीं बोला। हाथी ने अपनी सूंड उठाई, यानी कि ट्रंक को उठाया, उसको लपेटा उसकी बॉडी में, और उठाकर 2 बार जमीन में जोर जोर से पटका। लायन अपने आप को संभाला,
थोड़ा सा मट्टी विट्टी को उतारा बॉडी से और कहा, ए भाई साहब, मैंने तो सिर्फ पूछा ना, तुम हाथ क्यों बता रहे हो? मैंने थोड़ी आपसे मारामारी करने को आया। तो क्या है मिस, आपको ये कहानी क्या बता रहा है? सो हु इज द लायन एंड हु इज द एलिफेंट इन दिस स्टोरी? लायन हम लोग हैं, जो हम इस धरती की राजा समझ रहे थे आज तक। हम सब धरती के राजा समझ रहे थे। ओके, तो लायन हम लोग हैं। हम धरती में हर वो चीज कर रहे थे जो हमको लगा सही है। पेड़ को काटना, नदियों को सुखाना, जंगल को तोड़ना मरोड़ना, मीन्स अब हम जो चाहे इकोलॉजी के साथ जो सत्यानाश करना चाहे वो सब कुछ किया। और एलिफेंट क्या है? एलिफेंट को आप नेचर समझो, नॉलेज समझो, कुछ भी समझो आप। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बुद्धिमान नहीं हैं। एलिफेंट सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, और एलिफेंट ही हमारा नेचर भी है। आज देखिए नेचर ने हमको किस तरीके से कोरोना वायरस के माध्यम से हम सबको घर में बैठा के रखा है। 4 महीने से एक भी आदमी अपने घर से हिलने को डरता है। एंड दैट्स व्हाट इज द न्यू वर्ल्ड इज ऑल अबाउट। जिस बाजार में, जिस कमर्शियल मार्केट में हर चीज कंज्यूम होती थी, उसी मार्केट में आज सिर्फ एसेंशियल्स खरीद रहे हैं। कपड़ा खरीद के 4 महीना हो गया, स्टाइल स्टेटमेंट मार्कर चेयर में 6 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, सॉरी 4 महीना हो गया। हर चीज करके 4 महीना हो गया, जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते थे। एक नेचर ने हमें, हम सबको ऐसा सबक सिखा दिया जो हमने कभी जिंदगी में कल्पना नहीं की। सो व्हाट इज द न्यू थिंग फॉर अस? एंड सबसे बढ़िया चीज क्या है मालूम है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आपसे मैं जनरली मेरे सवाल पूछना भी बदला नहीं। मैंने बोला ना, नथिंग हैज चेंज। मैंने 10 साल पहले भी यही सवाल पूछा, आज भी मैं आप लोगों से यही सवाल पूछने वाला हूँ। मैं आप लोगों से जवाब नहीं मांगूंगा, आपके मन में आप लोग सोच लीजिएगा, आप जो भी जवाब रहेगा। 10 साल पहले मैं लोगों को सारे ओरिएंटेशन कोर्स में मैं बच्चों को ये सवाल पूछता था, यार भारत में कितने प्रतिशत लोग ट्रेन में सफर करते हैं? मेरा सवाल है, भारत में कितने प्रतिशत लोग ट्रेन में सफर करते हैं, रेल की यात्रा करते हैं? आप अपना मन में सोच लीजिएगा जवाब। तभी भी वही जवाब आता था और अभी भी वही जवाब आएगा, मेरा कॉन्फिडेंस है। तभी भी लोग कहते थे 70, 80, 90, कोई 60 के नीचे नहीं आता था। ठीक है, और आज भी अगर मैं बच्चों को पूछूंगा तो बच्चे यही कहेंगे 60, 70, 80, 90। हो सकता है किसी ने 50 बोल दिया हो, क्योंकि रोड में गाड़ियां देख ली, इसलिए शायद 50 बोल दिया हो, लेकिन नंबर उससे कभी कम नहीं हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि मात्र 12.5% लोग हमारे रेल में यात्रा करते हैं। बाकी सारे के सारे 80% या 87% पीपल जो है वो ट्रैवल करते हैं रोड पे। सिर्फ 1% या 1.25%, 1.25% ऑफ आवर ट्रैवलिंग पॉपुलेशन ट्रैवल बाय फ्लाइट। तो आप देख सकते हो। अब आप पूछोगे ये एकदम घिसा पिसा सवाल का मतलब क्या? इससे हमारी नॉलेज कहां बढ़ेगी? मैं बताता हूं कहां बढ़ेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट से पीजीडीएम करने के बाद अगर आपने सोचा कि आपको अगर एक खाने का स्टॉल खोलना है या रेस्टोरेंट खोलना है, तो आप कहां खोलोगे? वहीं खोलोगे जहां पे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन खाने के लिए आते हैं। आप तो लोकेशन ढूंढोगे ना, और आपके नॉलेज से लोकेशन कहां बेहतर है? अगर आप 80%, 60%, 70% बोलने वाले हो रेल की यात्रा में, तो आप प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन के आसपास में ढूंढोगे अपनी जगह को। लेकिन हकीकत में जहां ढूंढना चाहिए वो हाईवेज में ढूंढना चाहिए, क्योंकि 80% के ऊपर यानी कि 87% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल ट्रैवल बाय रोड। सो उस 87% पॉपुलेशन को की फुटफॉल को आपकी रेस्टोरेंट में लाना है, या कोई उन लोगों में से कुछ परसेंटेज को आपकी तरफ खींचना है, तो आपको अपनी रेस्टोरेंट को खोलना पड़ेगा हाईवेज पे। अब देखिएगा, ये बहुत सिंपल नॉलेज है, लेकिन अपने बिजनेस के लिए कितना बड़ा फंडामेंटल है, बुनियादी चीज है। इस बुनियादी चीज को समझना हमारे लिए ये कॉलेज मदद करेगा।
कॉलेज का सबसे बड़ा काम ये रहेगा बुनियादी चीजों को समझाना, और मुझे यकीन है कि कॉलेज इस तरह की चीजों को समझाएगा। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि यहाँ पे जो एलिफेंट नॉलेज है, आपका कॉलेज भी एक एलिफेंट है, वो एक नॉलेज सेंटर है। इसके पास जाना, छोड़ना नहीं। अगर आपने फीस के तौर पे अगर 100 रुपया दिया है तो 110 रुपया, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, आपकी फीस आपने कितनी भी दी होगी वो आपके और आपके कॉलेज के बीच में है, लेकिन आपने जो फीस दी है उससे 10 गुना ज्यादा कॉलेज के पास से उठाना आपका काम है। 25% एब्सेंट रहोगे तो चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि नॉलेज विल नॉट गिव यू, एक बार वहां से चले जाओगे तो नॉलेज कभी नहीं आएगा। आपके सामने में एक स्क्रीन है, अभी शायद दिख रहा होगा आपके सामने में, बहुत अच्छी स्क्रीन है जिसमें 1983 का इंडियन क्रिकेट टीम के टीम मेंबर्स है, आपके सामने में है। कपिल देव, मोहिंद्र अमरनाथ, कीर्ति आजाद, रॉजर बिन्नी, सुनील गावस्कर, किरमानी, मदन लाल, संदीप पाटिल, यशवंदर पाल, बलविंदर सद्दू, रवि शास्त्री, श्रीकांत, सुनील वालसन और दिलीप वेंकसारकर, ये लोग हैं। ये लोगों ने वर्ल्ड कप का कप को भारत के लिए लाया था। उसके बाद डायरेक्टली मैं 2019 पे आता हूँ। 2019 में भी बहुत लोग हैं, कुलदीप, मोहम्मद, शामी, विजय, केएल राहुल, शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी, आप सब लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर पूछूं कि ये पिछले वाले और ये वाले, इन दोनों में फर्क क्या है, तो क्या कहोगे आप लोग? पिछले वाले और ये वाले में फर्क क्या है, तो आप लोग क्या कहोगे? हो सकता है कि कोई लोग कहेंगे सर 1983 में 14 लोग थे, अभी 15 लोग हैं। कुछ लोग ये भी मुझे कहे हैं कि पहले जमाने में सब लोग क्लीन शेवन थे और यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम दाढ़ी रखे हैं, ये भी बोलेंगे। लोगों को यही लगेगा, लेकिन हकीकत में डिफरेंस क्या है मालूम है? डिफरेंस एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारी नजर पे नहीं आ रहा है। वो डिफरेंस क्या है मालूम है? वो डिफरेंस ये है, 1983 में कुछ लोगों को छोड़ के, यानी कि कपिल देव और शायद और एक इंसान, मेरे ख्याल से कपिल देव एक था जो चंडीगढ़ से आया था, और उसके अलावा एक सज्जन थे जो यशपाल शर्मा था जो पंजाब से आया था। उसके अलावा जितने लोग भी आए वो सारे के सारे चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, वैसे वैसे शहरों से आए, दिल्ली मेट्रो सिटी से आए। और 2019 में अगर आप देखोगे तो जिंद, कानपुर, अहमदाबाद, सूरत, जामनगर, अमरोहा, तिरुनेलवेली, रांची, पुणे, नागपुर, क्या बता रहा है ये आपको? इसका मतलब क्रिकेट नाम की जो शौक था, क्रिकेट नाम की जो गेम था, वो मेट्रो सिटी से निकलकर सारे कस्बों में पहुंच गया है। इसके वजह से वहां पे इस तरह के योद्धा निकल कर आ रहे हैं, जैसे तिरुनेलवेली में से विजय शेखर। अब बताओ यार, तिरुनेलवेली, मैं साउथ का हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। तिरुनेलवेली में हम लोग जाते थे हलवा खाने के लिए। अब वहां से निकल कौन रहा है? इंडिया का एक बड़ा प्लेयर निकल रहा है, आप देख सकते हैं। कानपुर, आप हर शहर को ले लीजिए, सूरत, हार्दिक पांड्या वहां से आया हुआ है। अगर आप देखोगे तो 1983 से लेकर 2019 के अंदर जो फर्क हुआ है वो ये हुआ है कि क्रिकेट हर एक कस्बे में पहुंच गया है। इसका मतलब इफ द नॉलेज कैन ट्रैवल टू दीज प्लेसेस, वहां से योद्धा निकल सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट जयपुर जैसे इंस्टीट्यूट आजकल बंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद ऐसे जगह पे नहीं है। दे आर गोइंग टू टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज, एंड जयपुर एक टायर 1 सिटी है। अब टायर 1 सिटी में बच्चे टायर 2 और टायर 3 से भी आते हैं, और वो लोग वहां पे एक मैनेजमेंट कल्चर सीखते हैं। अब उस मैनेजमेंट कल्चर के वजह से वो वहां के योद्धा बनते हैं और वो नेशनली कॉम्पीट करते हैं।
अगर आने वाले इस 2 साल के समय को आपने अगर 100% देने की कोशिश की, वो भले ही क्लासेस इंटरनेट में से हो, ऑन स्क्रीन हो, ऑन पब्लिक हो, मतलब वो नहीं है। फंडामेंटल ये है कि क्लास हो रही है। अगर वो क्लासेस को आप रेगुलर अटेंड करना शुरू करोगे, अगर पढ़ाते समय आपका ध्यान सिर्फ फोकस कंप्यूटर पे ही रहेगा और उनकी शब्दों पे रहेगा, विराट कोहली बनना भी आसान है, हार्दिक पांड्या बनना भी आसान है, विजय शेखर बनना भी आसान है और रविंद्र जडेजा बनना भी आसान है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। You can become anybody in your area of work like cricketers became between 1983 to 2019. Huge change. That's what exactly I wanted to say. लेकिन सब का चीज मिस मैं वापस जाता हूं, इन सब में डिफरेंस क्या है? क्रिकेट खेलने के लिए मिस क्रिकेटर इंडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्रिकेट में आपको माहिर बनना पड़ेगा। अगर कॉर्पोरेट में आपको माहिर बनना है तो आपको क्या चाहिए? कॉर्पोरेट में अगर आपको माहिर बनना है तो आपको एक लाइन चाहिए जिसका नाम है थॉट लीडर। पहले भी थॉट लीडर की जरूरत होती थी, अभी बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है। थॉट लीडर बनना बहुत जरूरी है। थॉट लीडर का मतलब क्या है भाई? वर्ड तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मतलब क्या है? थॉट लीडर का मतलब क्या है? थॉट लीडर की मतलब मैं आपको 3 कहानियों से सुनाने वाला हूं। बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहानियां बड़ी मजा आता है और कहानियां बहुत कुछ सिखा के भी जाता है, याद रखिएगा। कहानी तो है, कंज्यूम कर लीजिए, फिर सोचिए, फिर आप क्या करोगे। जैसे मैंने आपको एक ट्रेन का क्वेश्चन पूछा था, कितने प्रतिशत लोग ट्रेन में जाएंगे, आपको मैं उसी तरह का एक कहानी एक जगह पे ले जाने वाला हूं जहां पे कुछ घटना भी थी। 2012 की कहानी है ये। एक शहर था, अब वो शहर के बारे में बाद में बात करेंगे। होटल है रिट्स कार्टन। अब रिट्स कार्टन होटल पे एक बच्चा और एक पिता हॉलिडे मनाने के लिए जाते हैं। अपना पूरा वीक की हॉलिडे बड़े अच्छी तरीके से मनाते हैं। अब मनाने के बाद उस मनाने के बाद सॉरी उसको मनाने के बाद एक हाँ एक मिनट, दैट हैज बिकम जस्ट अ सेकंड। हाँ, मनाने के बाद रात को 8 बजे या 8:30 बजे वो यू नो नहीं, रात को 12:30 बजे प्लेन निकलने वाला होता है। बच्चा सो जाता है, बच्चे को अपने कंधे में डालता है और पिताजी उसको लेकर एयरपोर्ट चला जाता है। एयरपोर्ट में अपनी फ्लाइट की चेकिंग करता है, प्लेन में बैठता है। सुबह बच्चा 6 बजे उठता है और पूछता है, पापा हम कहाँ हैं? पापा बोलता है, बेटा हम प्लेन पे हैं, हम लंदन की तरफ जा रहे हैं, हमारे घर की तरफ जा रहे हैं। प्लेन उड़ान भर चुका है और बीच के रास्ते पे है। तो बच्चा इनएडवर्टेंटली यानी कि अपने बच्चे के हिसाब से पूछता है, पापा मेरा फ्रेंड जोशी किधर है? उसका फ्रेंड जोशी जो है वो एक खिलौना है, जैसे टेडी बेयर होती है, जोशी उसके फ्रेंड था। और जोशी के बारे में जब पिताजी सुनते हैं तो पिताजी हैरान, उनको मालूम पड़ जाता कि गलती हो गया। उन्होंने उसको होटल पे ही छोड़ दिया गलती से, क्योंकि सामान की तो गिनती रखते, लेकिन बेबी के गुड़िया को गिनती में रखना कभी कभी पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने नहीं किया, तो उन्होंने उनके मुंह से निकल गया, ओ गॉड वो तो छूट गया। बच्चा इमीडिएटली अपने कुर्सी से उठ कूदता है, कूद कर नीचे गैली में, जो प्लेन की गैली होती है उसमें आता है और कहता है, हाउ यू कैन डू दैट? तुम कैसे कर सकते हो ऐसे? चलो प्लेन को पलटाओ, वापस ले जाओ, होटल जाना पड़ेगा अपने को लेने के लिए। पिताजी बोलता, बेटा मैं तेरे को नया लाके दे देता हूँ, चिंता मत कर। बोलता, नया? वो तो मेरा दोस्त था। तुम क्या अपने दोस्त को छोड़ के नया दोस्त लोगे क्या? नहीं, मुझे वही चाहिए। जिद, कंप्लीट जिद करना शुरू कर दिया, प्लेन में तांडव मचाना शुरू कर दिया और पिताजी को एकदम एम्बैरस कर दिया। पिताजी को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। एक सेकंड, एक सेकंड। पिताजी को मालूम नहीं पड़ा कि वो क्या करे। एक सेकंड। घर से ये सब करने पे यही प्रॉब्लम होता है। यही वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ डॉग। एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, सो उसको कहता है कि नहीं नहीं एक प्रॉब्लम हो गया, रुको रुको मैं बताता हूँ क्या हो गया।
तो बच्चे ने जब तांडव मचाना शुरू किया तो पिताजी ने एक कहानी बनाई, झूठी कहानी बनाई। वो झूठी कहानी ये थी कि बोले रुको 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 रुको, गलती हो गई मेरे से, मैं बताता हूँ क्या हुआ। कल रात को तुम जब सो रहे थे तभी तुम्हारा फ्रेंड जोशी मेरे पास आया था, उस टेडी बेयर का नाम था जोशी। वो मेरे पास आया था और वो मुझे कहने लगा कि तुम उसके कान पैर सब खींचते हो यार, उसको एक 10 दिन की आराम चाहिए। तो उसने पूछा कि क्या मैं होटल में रह सकता हूँ? तो मैंने बोला ठीक है रह जाओ, कोई बात नहीं, तुम भी हॉलिडे करो, हम लोग घर जाते हैं, तुम बाद में आना। तो बच्चे ने सोचा यार चलो, उसने पिताजी ने सोचा, ये बोल दिया। तो बच्चे ने सोचा बहुत अच्छा किया आपने, ये पहले ही बता देना चाहिए था आपको। बच्चा एकदम शांत। अब पूरी प्लेन चल पड़ी, मीन्स चल रही थी प्लेन, लंदन उतरा। लंदन उतरते उतरते पिताजी के दिमाग में प्लान चल रहा था कि वो किस प्रकार से उस गुड़िया को वापस लाएंगे फ्रांस से। वो लंदन उतरे, उतरते बरबरी फोन किया फ्रांस को। I'm audible? हेलो? Yes, sir. Right now you are audible. एक सेकंड के लिए बंद हो गया था ना कुछ। जी जी, हाँ जी, अभी ठीक है सर। अभी ठीक है ना? ओके फाइन। हाँ, तो आई हैव टू शेयर द स्क्रीन अगेन नाउ। yeah. This is all the problem of technology. Okay, fine. Great. Okay. So ये उसकी कहानी है। तो उसको फोन किया तो आप बोले कि आपकी गुड़िया कहाँ है? तो बोले मैं फलाना फलाना रूम का हूँ, मेरी एक गुड़िया छूट गई थी, वो आपके पास है क्या? होटल वाले ने कहा तत्काल, यस सर, आपकी गुड़िया हमारे पास है, आप चिंता मत कीजिएगा, आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन उस पिताजी ने कहा नहीं 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 नहीं, मत भेजिएगा, प्लीज मत भेजिएगा, क्योंकि मैंने मेरे लड़के को झूठ बोला है कि ये गुड़िया जो है वो 10 दिन हॉलिडे कर रही है। और ये गुड़िया का फोटोग्राफ है, ओरिजिनल फोटोग्राफ आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन में, वो देख सकते हैं आप। और वो कह रहा है कि आप उसको संभाल के रखिएगा, 11वां दिन हमारे पास भेजिएगा। होटल वाले ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 11वां दिन हम आपके घर में भेज देंगे, क्योंकि आपका एड्रेस है हमारे पास, हम भिजवा देंगे। अब बताइए, अगर आप उस फ्रंट ऑफिस मैनेजर के पोस्ट पे होते थे और आपको ये फोन आया तो आप क्या करोगे? तो मैंने ये जब सवाल कई बच्चों को पूछा तो वो लोगों ने कहा हम 11वां दिन भेज देंगे। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर हम उसको पैक करके 10वें दिन ही भेज देंगे या साइड में रखेंगे, कुछ ना कुछ बताए। लेकिन आपको मालूम पड़कर हैरान हो जाओगे आप कि आप जैसे उम्र वाले, मीन्स इक्वल उम्र वाले 24-25 साल का फ्रंट ऑफिस मैनेजर एक लड़का किया क्या? उसने बहुत बेहतरीन काम किया। उसकी कहानी हम 1-2 मिनट के बाद सुनेंगे। उसके बीच में देखेंगे कि यहां क्या हो रहा है। ठीक है, लंदन में क्या हो रहा है। लंदन में स्कूल में बच्चा गया, अपने अपने सहपाठियों के साथ, यानी कि अपने दोस्तों के साथ में बताया यार मैं तो फ्रांस गया था, मैं वो देख के आया, ये देख के आया। और साथ साथ में कहा कि मेरा जो टेडी बेयर है वो हॉलिडे मनाने के लिए फ्रांस गया है। तो सारे बच्चे लोगों ने बोला यार झूठ काम बोल रहे हो, झूठ भी तो कुछ अच्छे तरीके से सोच समझ के बोलो, कभी गुड़िया जाता है क्या, टेडी बेयर जाता है क्या हॉलिडे मनाने के लिए? बच्चों को बहुत गुस्सा आया, बोले नहीं, आप मेरे पिताजी से पूछिए, शाम को आएंगे मुझे लेने के लिए, आप पूछिएगा। अब वो शाम को अपने दोस्त को लेकर पिताजी के पास हाजिर, वो लेने को आए। उन्होंने कहा कि पिताजी अपना गुड़िया हॉलिडे मना रहा है ना फ्रांस में, इसको समझाओ, ये बोल रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो इसके पिताजी ने बोला हाँ, ये गुड़िया एक्चुअली हॉलिडे मना रहा है। अब क्या आप कहानी बोलना है तो उस झूठ को कंटिन्यू कर रहे पिताजी। लेकिन उस समय पे जब ये बोलना शुरू किया तो बच्चे सुने और चले गए। ये न्यूज स्लोली स्कूल में फैला कि इस लड़के का गुड़िया जो है वो फ्रांस में हॉलिडे मना रहा है। और वो पर इवनिंग न्यूज ऑफ लंदन ने एक एंकर स्टोरी बनाकर उसको छाप दिया था, कहकर कि एक गुड़िया वहां पे हॉलिडे मना रहा है। और उन लोगों ने फ्रांस के उस होटल के साथ बात की और उनकी कोर्ट ली। क्यों कोर्ट ली, मैं बताता हूं उन लोगों ने क्या किया। वही जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर ने आपके जगह में अगर वो रहने वाला एक यंगस्टर ने किया क्या, उसने सोचा यार जब 11 दिन ये गुड़िया मेरे होटल पे रहने वाला है, क्यों नहीं उसको हॉलिडे दे जिस तरीके से लोग हॉलिडे करते हैं।
उसको पहले उसने एक आइडेंटिटी कार्ड बनाया, रिट्स कार्टन होटल अमेलिया आइलैंड का एक हॉलिडे बनाया, उसका नाम लिखा जोशी हर्न, लॉस एंड प्रिवेंशन डिपार्टमेंट का ये आइडेंटिटी कार्ड है, 25 मार्च 2012 की डेट आपको दिख रही है वहां पे, उसके गले में इसको आइडेंटिटी कार्ड को पहनाया, उसको पहनाने के बाद उसको स्विमिंग पूल में लेके गया, सन बेथिंग करवाया। देखिए गॉगल पहनकर सन बेथिंग कर रहा है वो बुढ़िया, आप देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको जू में लेके गया, उसको कार ड्राइव करवाया, उसको स्पा में लेके गया, उसकी पूरी मॉलिश हुई, उसका सारा चीज हुआ, उसको कंप्यूटर गेम्स के सेंटर पे लेके गया, उसको कंप्यूटर खेलने को लगाया, वो हर चीजें की जो हर एक टूरिस्ट करता है। अब उसके बाद 11वां दिन के बाद ये सारी फोटोग्राफ्स और वीडियोस को कलेक्ट किया गया, उसको पैक किया गया। अब उसकी पैकिंग को लेकर उसको पैक करके लेने के बाद, उन सारी चीजों को लेने के बाद 11वां दिन लंदन को उसे भेजा गया। अब आप देखिएगा ये सारी पिक्चर्स है और ये इस पिक्चर के साथ में उसे लंदन वापस भेजा गया। लंदन में जब ये गुड़िया पैकेट बनकर करीब कुरियर में आ रही थी, तो इस कुरियर को लेने के लिए ना ही उस हर्न नाम का एक छोटा सा लड़का था, उसके पिताजी थे, लेकिन मीडिया के बहुत सारे लोग थे। उन लोगों को यह समझना था कि एक टेडी बेयर हॉलिडे कैसे कर सकती है। जब इस फोटोग्राफ रिलीज हुआ, सारी मीडिया में ये छपने लगा, तो आप जानते हो रिट्स कार्टन की जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो अगले साल तकरीबन 27% बढ़ चुकी थी। 27%। किस वजह से? सिर्फ एक आदमी की सोच की वजह से कि यार जब एक गुड़िया को हॉलिडे देने की झूठ तो बोला ही गया है, तो उसको सच में हॉलिडे क्यों ना दे दे। ये सिर्फ एक सोच, थॉट लीडरशिप। इसमें क्या खर्चा हुआ होगा बताइएगा? कुछ नहीं, सिर्फ फोटो का खर्चा हुआ, लेकिन इससे माइलेज क्या मिला उस कंपनी को, रिट्स कार्टन को? अगले साल से हर एक बच्चा अपनी टेडी बेयर को साथ ले जाता था और कहता था कि मेरी टेडी बेयर भी यहाँ पे हॉलिडे मनाएंगे, और उसको धो धा के स्पा करके उसको वापस भेज देते थे रिट्स कार्टन वाले। आप देखिएगा कितना बड़ा सोच है उस यंगस्टर के पास। अब आपको मैं दूसरी स्टोरी पे ले जा रहा हूं। सैन्सबरी नाम की एक ब्रेड कंपनी है। उस ब्रेड कंपनी के पास एक ब्रेड है जिसका नाम है टाइगर ब्रेड। अब टाइगर ब्रेड एक ब्रांड होती है, जैसे टाइगर बिस्किट होता है आईटीसी के पास, उसी तरह उनका ब्रेड का नाम है टाइगर ब्रेड। अब टाइगर ब्रेड, अब आप देखिएगा ये है टाइगर ब्रेड, ठीक है। अब बताइएगा ये किस रूप से आपको टाइगर दिखता है। एक छोटी सी लड़की लिली रॉबिन्सन, 3.5 साल की लड़की, अपने पिताजी का हाथ पकड़कर ब्रेड की दुकान के सामने से गुजर रही थी और उसने पूछा, डैडी ये क्या है? तो डैडी ने कहा ये टाइगर ब्रेड है। तो उसने बोला, डैडी ये टाइगर दिखता कहाँ है? ये तो जिराफ दिखता है, टाइगर थोड़ी है ये। तो डैडी हंस पड़े, क्योंकि 3.5 साल की बच्ची कभी कभी ऐसे क्यूरियस क्वेश्चन पूछ लेती है। तो डैडी ने कहा, हाँ बेटा ये तो जिराफ ही दिखता है, टाइगर तो दिखता नहीं है। तो वो बोलकर उसके हाथ पकड़कर उसको खींचकर ले जाने लगे। तो बच्चा आने से इनकार कर दिया। बच्चे ने कहा, नहीं 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 नहीं, अब तो दुकान वाले के पास जाएंगे और पूछेंगे कि इसका नाम आपने टाइगर क्यों रखा, इसका नाम तो आपको जिराफ रखना चाहिए। तो चलो बोले, चलो ब्रेड भी खरीद लेते हैं। तो उस लड़की के साथ में दुकान के अंदर जाते हैं। दुकान वाला बड़ा है, सैन्सबरी नाम के ब्रेड कंपनी का है, उन्होंने टाइगर करके इसका नाम रखा। वो आपको जिराफ दिखता होगा, लेकिन ब्रांड नेम अलग होता है, दिखना अलग होता है। बच्चा सुनने को एक भी सुनने को राजी नहीं है। बच्चे ने बोला, नो, if the bread is not looking like a tiger, you cannot call it as tiger bread, you have to call it as giraffe bread। बस वो कान पकड़ लिया दुकानदार ने और कहा कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता इसको, ये कार्ड पकड़ो, ये कार्ड को ले जाओ और कंपनी को जाके बोलो कि इसका नाम बदलना चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो घर गई, यहाँ पे देखिएगा इस स्लाइड में आपको दिखेगा। वो घर गई और घर जाकर इस छोटी सी चिट्ठी लिखी, why a tiger bread is called as tiger bread, it should be called giraffe bread। लिली रॉबिन्सन, 3.5 साल, एक अपने माँ बाप की थोड़ी सी असिस्टेंस लेके सैन्सबरी को उसने एक चिट्ठी लिखा। अगर आप एक कंपनी के पब्लिक रिलेशन मैनेजर होंगे या कंज्यूमर रिलेशन मैनेजर होंगे और आपके पास ऐसी एक चिट्ठी आएगी तो आप क्या करोगे? सोच लीजिएगा आप क्या करोगे।
आप जो भी करोगे, 27 साल का क्रिस किंग नाम का, आप ही का उम्र का, हम उम्र का एक लड़का वहां का कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजर था, या पता नहीं कस्टमर सपोर्ट मैनेजर था, हाँ कस्टमर सपोर्ट मैनेजर था। 27 साल का लड़का था, और उसने क्या किया, एक चिट्ठी लिखा उसको, बेटा हम इसको क्यों नहीं टाइगर ब्रेड नाम ही रखना पड़ेगा, क्यों नहीं हम इसको जिराफ ब्रेड नहीं कर सकते। उसका कारण को लिखकर उसने एक चिट्ठी लिखी, जो चिट्ठी आपके स्क्रीन में दिख रही है। अब उसने चिट्ठी लिखा, अब उसके बाद चिट्ठी पहुंचा तो वापस उसने चिट्ठी लिखा, बच्चे ने वापस क्रिस किंग ने लिखा। ये जो चिट्ठी का आदान प्रदान होने लगा, ये 4 हफ्ता चलता रहा। अब घर में जब भी कोई छोटे बच्चों को चिट्ठी आती है तो माँ बहुत खुश हो जाती है, माँ बाप उसकी शाइनिंग करना शुरू कर देते हैं, लोगों को दिखाते हैं, आप जानते हो मेरा बच्चा चिट्ठी लिखता है फलाना कंपनी को, जिसको एबीसीडी लिखने को नहीं आता वो चिट्ठी लिख रहा है, देखिएगा। अब उस चिट्ठी को उठाकर उसकी मम्मी ने फेसबुक में डाला, ये है ओके, अब कैंपेन टू चेंज द टाइगर ब्रेड टू जिराफ ब्रेड एट सैन्सबरी, उसकी मम्मी ने इसको डाला। अब ये जो फेसबुक में उसने डाला, ये 2016-17 की बात है, और जब उसने डालना शुरू किया तो ये इतने बड़े पैमाने में वायरल हो गया कि पूरी लंदन ये पूछने लगी कि इस हफ्ता आपकी बच्ची लिखने वाली क्या है। और वहां पे क्रिस किंग इस पूरे मुहिम के ऊपर नजर रखता हुआ वो अपनी मैनेजमेंट को कन्विंस कर रहा था, सर दिस इज अ टाइम टू चेंज द नेम ऑफ द ब्रांड। और आप मानोगे नहीं, वो कंपनी के मैनेजमेंट ने भी इस ब्रेड का नाम को चेंज करने का 105 साल बाद एक ब्रेड का नाम चेंज हुआ सैन्सबरी का, जिस ब्रेड का नाम था टाइगर ब्रेड, उसको जिराफ ब्रेड किया गया। अब आप देखिएगा उसके नीचे में हर एक दुकान में ये ब्रेड को ऊपर एक नया पोस्टर लगी, थैंक्स फॉर a clever suggestion from one of our customers, we have changed the name of our tiger bread to giraffe bread. Don't worry, the recipe hasn't changed and the bread still tastes as great as ever. मीन्स हमने नाम चेंज किया, टेस्ट नहीं चेंज किया, और वो वैसे के वैसा ही है जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हमारी एक अच्छी खाती क्लेवर कस्टमर ने ये सजेशन दिया कि इसका नाम जिराफ ब्रेड होना चाहिए। अब आप जानते हो, जब एक कंपनी एक छोटी सी बच्ची की बात को सुनकर अपना ब्रांड का नाम बदलती है, वो बाकी कस्टमरों के नजर पे बहुत ऊंचा उठ जाता है। और उसके वजह से ब्रेड सेल ऑफ सैन्सबरी, I was told the largest bread selling company का अपना 12% सेल बढ़ा, और 12% छोटे नंबर नहीं है। जब आप मिलियंस ऑफ ब्रेड लोफ बेचते हो, उस पे 12% की जंप सिर्फ इस नेम चेंज की वजह से हुई, तो आप समझ सकते हो कि उन्होंने कितना बड़ा जगह कस्टमरों के दिल में पकड़ा है। और उन लोगों को ये था कि जब एक छोटे से 3.5 साल की बच्ची की बात को एक कंपनी सुनता है, तो ये कंपनी हर कस्टमर की बात को बड़े अच्छे से सुनता है। इसीलिए ये बहुत विश्वसनीय मोस्ट बिलीव्ड कंपनी और मोस्ट रेस्पेक्टेड कंपनी बना, और उसके ब्रेड ज्यादा बिकने लगे। मैं तीसरा एक क्विक लेवल स्टोरीज पे जाता हूँ। मिस जोशी जॉन, कैन आई कंटिन्यू फॉर 10-15 minutes? It's already 12:22, if you don't mind. Miss Jessie John? Yes, sir. Please continue, sir. We have got time. No problem, na? Because it's already 12:22. We will continue for another 20-25 minutes if it is okay. Yes, sir. Yes, sir. Please. Are you able to hear me out? Miss, मुझे कोई response नहीं दिख रहा है, इसलिए पूछ रहा No, हूँ। sir. It is a wonderful session. It is actually mesmerized. We are all sitting in the mesmerized mood. So please continue. So sweet of you. Thank you so much. Okay. तो एक तीसरा एग्जाम्पल है, बंजी स्टूडियो करके एक स्टूडियो है। अब ये स्टूडियो बहुत सारे वीडियो गेम्स बनाते हैं, जो बच्चे लोग खेलते हैं, जो वीडियो गेम्स बनाते हैं। अब इस वीडियो गेम्स में हैलो नाम का एक वीडियो गेम था, पता नहीं आप लोगों ने खेला है कि नहीं। बहुत साल पहले, यानी कि 4-5 साल पहले, एक हैलो नाम का एक गेम आने लगा, वो गेम वहां पे होता था। अब हैलो नाम का जो गेम था, वो गेम लॉन्च किया, और एक लड़का जो इस लॉन्चिंग के लिए वेट कर रहा था, उसकी एक प्रॉब्लम थी कि उसकी लिवर ट्रांसप्लांट होना चाहिए। वो एक बीमार बच्चा था, उसको लिवर ट्रांसप्लांट होने की जरूरत थी, और उसी समय पे
बंजी स्टूडियोज अपनी हैलो गेम को लॉन्च कर रही थी। बच्चा पिताजी को कह रहा है, मैं तब तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होऊंगा तब तक हैलो लॉन्च नहीं हो जाता है। और हैलो क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से किसी न किसी कारणवश पोस्टपोन होते जा रही थी। वो लोग एक हॉलिडे पे लॉन्च करना चाहते थे, इसीलिए वो नवंबर से दिसंबर तक पोस्टपोन होती जा रही थी। उसके पिताजी बहुत दुखी होकर कंपनी को चिट्ठी लिखते हैं कि मेरा लड़का बहुत जिद कर रहा है और आप अपना गेम को जल्दी। हाँ, can we hear Nirmal? Yes, Can sir. we hear? Yes, sir. Yes, sir. Can you hear me now? Yes, Okay, sir. fine. Because I am not able to see the pictures on the side, so एक काम करोगे आप, will you come live before me, Nirmal? Yes, sir. Please. तो थोड़ा सा मेरे को हेल्प हो जाएगा कि आई एम लाइव, और बिकॉज मेरे को स्क्रीन नहीं दिखता है तो समझ में नहीं आता है. ओके, थैंक यू. Some are there live before me. Shweta is there, somebody else is also there. Thank you very much. तो उसके पिताजी ने चिट्ठी लिखी, तो पिताजी के लिए वापस एक कार्ड आया, गेट वेल सून कार्ड आया. पूरी कंपनी ने उसको साइन करके कि उस बच्चे को कन्विंस किया, बेटा आप हॉस्पिटल पे एडमिट हो जाओ, आप ऑपरेशन कर लो, आपके बिना हैलो लॉन्च नहीं होगा. जब कंपनी से चिट्ठी आई तो उस बच्चे ने मान लिया और वो एडमिट हो गया. अब एडमिट होने के बाद उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो गई, वो बाहर आने से लेट हो गया, यानी कि हॉस्पिटल से बाहर आने पे लेट हो गया, और कंपनी को अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना था. लेकिन कंपनी अपने वादे से मुकरना भी नहीं चाहती थी, तो उस कंपनी ने किया क्या? देखिएगा, बहुत छोटी सी चीज है सब, लेकिन वो छोटी सी चीज कितनी बड़ी डिफरेंस उस प्रोडक्ट्स पे लेके आती है. इसी को थॉट लीडरशिप कहते हैं. ठीक है. अब उस कंपनी ने, ये है वो बच्चा, आपके सामने में पिक्चर है, वो डॉक्टर है. अब वो कंपनी उसके पास पहुंचा, उसकी मेजरमेंट ली, यानी कि उसके चेहरे की मेजरमेंट, उसकी बॉडी की मेजरमेंट ली, और हैलो जो पहनता था, जो मास्क पहनता था, जो हेलमेट पहनता था, वो रियल हेलमेट और मास्क को उसके साइज के मुताबिक उन्होंने तैयार करके उसको हॉस्पिटल में आके पहनाया. ये पिक्चर्स है, देखिएगा आप, ये सारे पिक्चर्स हैं. और उसको पहला गेम खेलने को दिया. आप देखिएगा, मार्केट में लॉन्च करना है, लेकिन उस प्रोडक्ट को उस बच्चे को खेलने को दिया. उस बच्चा हॉस्पिटल में रहकर ऑक्सीजन मास्क के साथ में इस कॉस्ट्यूम को पहनकर इस गेम को खेला. अब ऐसी कहानियां छुपती थोड़ी है, बाहर निकलती है. जब बाहर निकलती है और ये कहानियां जब बाहर जाने लगी, हर बच्चा इंप्रेस हो गया. यार, हमारा कोई साथी जो हॉस्पिटल में है, उसको ये गेम पहला खेलने दिया. और ये हैलो नाम की गेम जो है, जो नॉर्मली हर गेम शेल्फ में 6 महीना रहता है, 5 महीना रहता है, ये जो गेम है, ये तकरीबन 9 महीना शेल्फ में रहा. अब आप जान सकते हो, 3 महीना अगर कोई प्रोडक्ट शेल्फ में रहता है नए प्रोडक्ट आने के पहले, उसकी सेल के वजह से उस कंपनी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, आप समझ सकते हो. तो ये जो तीनों कहानियां, छोटी छोटी कहानियां हैं, छोटी छोटी एग्जाम्पल है, ये उन यंगस्टर्स की खेल की वजह से, उन यंगस्टर्स की सोच की वजह से, उन यंगस्टर्स की थॉट लीडरशिप की वजह से इस कंपनियों में प्रॉफिटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया. अगर थॉट लीडरशिप को एक बड़े डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करना, या थॉट लीडरशिप को इस 3 कहानियों के साथ एक्सप्लेन करना, एक ही है. अगर आप इस तरीके से काम करोगे, ये थॉट लीडरशिप का एग्जैक्ट वर्जन है. ठीक है. मैं, ये जो लड़का है यही है. बाद में जब हॉस्पिटल से निकला तो उसकी पिक्चर पेपर में जो छपी थी, वो पिक्चर मैं आपके सामने में रखा हूं, आप देख पा रहे हो उस पिक्चर को. दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट बॉय हु एक्चुअली वेंट फॉर द सर्जरी. ठीक है. अब हम आते हैं कोरोना वायरस के बाद वाले सिचुएशन में. कोरोना वायरस के बाद हो क्या रहा है? एक बड़ी परिवर्तन आ रही है. आज तक आपके ऊपर नजर रखता था गवर्नमेंट. जब आप सिग्नल तोड़ते थे, किसी को एक्सीडेंट कर देते थे, ये सब चीजें तब तक रखता था. कोरोना वायरस में हुआ क्या? आप एक ऐप
को डाउनलोड कर रहे हो, अपनी यहाँ आरोग्य ऐप है, कई कंट्रियों में बहुत सारे ऐप है। उस ऐप से हो क्या रहा है, आपके स्किन के अंदर जो बीमारी है उसको भी वो ऐप बाहर निकल कर दिखा रही है। याद रखिएगा इस बात को। एक बहुत बड़ा परिवर्तन ऑब्जर्वेशन, सर्वेलेंस पे हो रहा है, सर्वेलेंस पे हो रहा है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। जो चीज सिर्फ आप गलत करते थे, आपको सर्वेलेंस किया जाता था, वो आप आपके घर बेडरूम में बैठकर भी आपके ऊपर सर्वेलेंस होना शुरू हो चुका है। आप घर में अलेक्सा है, अगर अलेक्सा है तो वो आपके हर झगड़े को रिकॉर्ड कर रही है। अगला टाइम जब आप डिवोर्स लेने जाओगे, जो अक्सर बढ़ रहा है आजकल, तो शायद अलेक्सा विल बिकम द विटनेस कि आप कितनी बार आपके पत्नी के साथ झगड़ा किए। वी नेवर नो, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। मैं आपको एक फ्यूचरिस्टिक स्टोरी बताता हूं, आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि मैं जब भी फ्यूचरिस्टिक स्टोरी बताता हूं ना, तो लोग समझते हैं यार ये आदमी कहां से फालतू बात करता है, लेकिन वो रियलिस्टिक में होता है। मैं 1980 में कह रहा था कि लोग अपने घर से पानी लेकर जाएंगे, तो लोग बोलते थे ऐसा कभी नहीं होगा, पानी तो इंडिया में फ्री मिलता है। ठीक है, हुआ क्या, हम सब आज एक बिस्लरी की बोतल को लेके जा रहे हैं, अगर नहीं है तो कम से कम खरीद रहे हैं। याद रखिएगा। और आपको मैं गारंटी के साथ देता हूं, अभी आने वाले 3 साल के अंदर हम में से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर, छोटी वाली ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमेंगे। क्यों? ऑक्सीजन की मात्रा बहुत सारे शहर में कम होते जा रही है। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस मालूम पड़ रही है। या पेड़ बचाइए, ऑक्सीजन की मात्रा को इंक्रीज कीजिए, पोल्यूशन की लेवल को कम कीजिए। शायद कोरोना वायरस हमारे लिए सिग्नल है। या ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलिए। ऑप्शन आपके पास बहुत क्लियर है। अब आपको एक नया ऑप्शन देता हूं, नई स्टोरी देता हूं जो कभी सुनी नहीं होगी। आपको एक कहानी सुनाता हूं मैं, सुनिएगा। आप एक डेंटल इंश्योरेंस के लिए अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में डेंटल इंश्योरेंस यानी कि दांत के इंश्योरेंस के लिए आप पैसा भरते हैं। हो सकता है डेंटल इंश्योरेंस वाली कंपनी आपको ये कह दे, भाई साहब आप अपना ब्रश करने का जो सिद्धांत है वो आप सिर्फ दिन में 1 बार करते हो, आप 2 बार नहीं करते हो, इसीलिए आपको हम डेंटल इंश्योरेंस नहीं देंगे। अब सवाल देना लेना नहीं है, अब सवाल ये है, आप घर में ब्रश कर रहे हो, अपने बाथरूम में ब्रश कर रहे हो, ये कमबख्त इंश्योरेंस कंपनी को मालूम कैसे पड़ा? ये इसलिए मालूम पड़ा क्योंकि आज बहुत सारे लोग अमेरिका में इंटरनेट एनेबल्ड टूथब्रश ले रहे हैं। इंटरनेट एनेबल्ड टूथब्रश ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं? ताकि उनको पता चले कितनी बार आपने पीछे में घसा, कितनी बार आपने आगे में घसा, कितनी बार आप ऊपर नीचे घसे, ये सब कैलकुलेट करने के लिए। आपको याद आ रहा है, आप लोग हेल्थ बैंड रखकर घूम रहे हो, कितना कितना स्टेप्स निकाला आज, वो आपको बता रहा है ना आज। उसी तरह इंटरनेट एनेबल्ड ब्रश आपकी स्टैटिस्टिक्स को आपको रिवील कर रही है कि आपने कितनी बार ब्रश किया। और याद रखिएगा, जब टेक्नोलॉजी कोई डेटा को आपकी बॉडी के अंदर से निकालती है तो कहीं ना कहीं उसको स्टोर भी करती है। वो ऐसे ही हवा में गायब नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं यू कैन नॉट रिरेज द टेक्नोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। टेक्नोलॉजी की फुटप्रिंट को आप कभी भी मिटा नहीं सकते। याद रखिएगा इस बात को। आप अगर एक बार इंटरनेट इनेबल्ड टूथब्रश से अपनी फेसबुक को कनेक्ट कर दिया तो आपके फेसबुक के पास आप कितनी बार ब्रश कर रहे हो इसकी नंबर रहेगी। और इंश्योरेंस कंपनी फेसबुक को खरीदेगी या फेसबुक के पास उस डेटा को खरीदेगी। कुछ भी हो सकता है। मैं फेसबुक की नहीं कह रहा हूं, कोई भी ऐप, कोई भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म उस स्टैटिस्टिक्स को यूज कर सकती है। तो कोरोना वायरस क्राइसिस ने एक चीज को अनफोल्ड किया है, वो है आपको टेक्नोलॉजिकली मॉनिटर करना। तो आपके लिए सबसे बड़ा चीज क्या है मालूम है? आपकी डिसिप्लिन कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा ह्यूमन बनकर बिहेव करते हो समाज में। क्योंकि आप जितना अच्छा बिहेव करोगे उतनी टेक्नोलॉजी आपसे कोई इंफॉर्मेशन ले नहीं पाएगी। आप अगर अपने आप को चीट करोगे ऊपर नीचे करने में, टूथब्रश को या पीछे नीचे करने में, तो वो उस मात्रा को रिकॉर्ड कर रही है। अलेक्सा रिकॉर्ड कर रही है, वीडियो कैमरास रिकॉर्ड कर रही है। याद रखिएगा, आपके फोन, आप 10 साल पहले किसको फोन किए थे, रिकॉर्ड है, आप मिटा नहीं सकते। याद रखिएगा,
अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो। अगर आप ऐसे कोई साइट में जाते हैं जहां आपको जाना नहीं चाहिए, वो रिकॉर्ड को आप जिंदगी में कभी मिटा नहीं सकते, याद रखिएगा। कोई देखता नहीं है वो अलग बात है, जब देखना शुरू होगा आपकी खैर नहीं। तो सर्वेलेंस इज गोइंग टू बी द बिग थिंग। 3 चीज बदलने वाली है, बायोलॉजी, बिग डेटा और IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इन तीनों जगह you are going to have we are going to have more problems than yesterday, particularly after the corona, and the need to recognize them is more now. कोरोना के बाद हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम बढ़ने वाले हैं, लेकिन कॉलेज में होने के नाते अपने को ऑब्जर्व करना है। इस 2 साल में क्या क्या प्रॉब्लम बढ़ गए उसको ऑब्जर्व करो और उसके प्रति समाधान निकालिए, तो आप जीत जाओगे। 6 इंडस्ट्री जो रहेगी वो ये है। नेटवर्क हेल्थ केयर परमानेंटली रहेगी। नेटवर्क हेल्थ केयर का मतलब क्या है? एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप को लेकर आपकी छाती में लगाकर देखेगा, वो जमाना गया। आपको इंटरनेट से देखेगा, वो जमाना आ गया। कोरोना वायरस ने बता भी दिया कि वैसे ही हो रहा है। मैं और निर्मल 1 साल पहले एक प्रोग्राम कर रहे थे, वहां पे हम कह रहे थे कि निर्मल इंदौर था ना, हम इंदौर में प्रोग्राम कर रहे थे ना जब ये बात हुई एजुकेशन के बारे में। यस सर, इंदौर में हुआ था। yes, तो इंदौर में प्रोग्राम कर रहे थे, तो हमने कहा कि एजुकेशन अब कॉलेज में जाके लोग को लेना नहीं पड़ेगा, एजुकेशन घर में कंप्यूटर के माध्यम से आएगा। तो वहां पे कोई एक महान व्यक्ति खड़े थे, वो बहुत बड़े बड़े स्कूलों के मालिक है। उन्होंने कहा, क्या सर कैसे आएगा? अमेरिका में ही नहीं आया तो इंडिया में क्या आएगा? हम अमेरिका से 20 साल पीछे हैं। अमेरिका में जब आएगा उसके 20 साल बाद हमारे पास आएगा, तो हम देख लेंगे। और आप देखिएगा 1 साल के अंदर निर्मल हम सबके घर में पहुंच रहे हैं। यस नो बताइए? yes, 100% सर। 100% एजुकेशन को लेकर हम घर पहुंचना शुरू कर दिए, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द स्टूडेंट टू द कॉलेज। तो एजुकेशन की सिस्टम बदल रही है, फूड बदल रहा है, वाटर बदल रहा है, पावर बदलेगा। पावर एक जमाने में स्टेट प्रोड्यूस करती थी, हम सब यूज करते थे। अब एक जमाना आएगा जहां पे हम प्रोड्यूस करेंगे और स्टेट को देंगे, यानी कि हर एक घर के छत के ऊपर एक सोलर पैनल रहेगा। हम उस सोलर पैनल से यूज करेंगे, जो बचा हुआ रहेगा वो हम स्टेट के खंबे के लिए बेचेंगे। हो सकता है कि उसमें से हमको 16 रुपया मिले, 14 रुपया मिले, 10 रुपया मिले, वो नहीं मालूम कितना रुपया मिलेगा, लेकिन हम बाकी बचा हुआ मिलेंगे। पूरी सिस्टम बदल रही है। लिवेबल सिटीज, मैंने जो ऑक्सीजन की बात की है, वो स्मार्ट सिटीज बनेंगी, जिसको हम स्मार्ट सिटीज कहते हैं, वो वही सिटीज बनेगी। पहले जमाने में सब बच्चों को बंबई, दिल्ली, बेंगलोर ऐसे शहर में जाने की कल्पना होती थी। अब आने वाले समय में हर बच्चा स्मार्ट सिटीज में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्मार्ट सिटीज में लाइफ की क्वालिटी जो रहेगी वो बेहतर रहेगी। बंबई आप देख रहे हो, बंबई दिल्ली की हम बात करेंगे तो हमको कभी कभी शर्म आ रही है। आज वही बंबई दिल्ली जिसका बड़ा सपना होता था, वहां जाने को लोगों को डर लग रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस ने ऐसा बांध के रखा है अपने को। याद रखिएगा। तो ये जो मेगा सिटीज है, इनमें जाने की जो तमन्ना थी वो खत्म होते जा रही है, खत्म होते जा रही है हमारी। आप देखिएगा, दिस इज व्हाट विल हैपन। इसके बाद जो होगा, वी आर गोइंग टू हैव मोर ब्राइट माइंड्स, थिंक ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जो पेरेंट है, हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखते थे। हम समझते थे कि हमारे माता पिता यार बहुत मेहनत करते थे, कुछ नहीं कमाते थे, तो हम लोग स्मार्ट बने, हम लोग कमाना शुरू किया, तो हमने घर में वॉशिंग मशीन लाया, गाड़ी लाया, कूलर लाया, एयर कंडीशन लाया, इंटरनेट लाया, कंप्यूटर लाया, दुनिया भर के चीजों को लाए। तो हमने क्या किया? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया। और आज के बच्चे क्या बोलते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, लाइफ क्वालिटी के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो आज का पूरा कोरोना वायरस ने हमको कहां फोकस करने को लगाया? क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ एयर। देखिएगा निर्मल, मैं यही बता रहा था ना कि हम किस तरीके से आने वाले बच्चे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करेंगे। मैं कितने सालों से आपको बता रहा हूँ ये बात। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और आप देखिए आज यही चीज सच निकल रहा है। हाँ जी। आज हम सब वैसे ही लोग भी
हमारे जैसे आपके जैसे उम्र वाले लोग भी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जा रहे हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पीछे छोड़ रहे हैं। हमको नहीं लग रहा है कि हमको मशीन खरीदना चाहिए, बट क्वालिटी ऑफ फूड अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट अच्छी होनी चाहिए, इस सोच पे हम लोग उतर गए हैं। सो द 6 न्यू इंडस्ट्रीज, दिस थॉट प्रोसेस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये को पीछे करके हमारी पूरी सोच की जो तरीका है वो बदलेगा। उसके ऊपर अगर आपकी नजर रहेगी तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। एक क्विक रन टू कर देता हूं कि आने वाले समय में कौन सी बड़ी इकोनॉमी चलेगी। 5 मिनट में कर देता हूं। डिजिटल प्रोडक्ट बहुत बिकेगा, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट से ही वर्ल्ड कनेक्टेड रहेगा। गिग इकोनॉमी एक नई चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं 1 मिनट लेके, बाकी सब मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा। गिग इकोनॉमी का मतलब यह है, आपकी जो एयरबीएनबी करके कंपनी नाम सुना होगा, जिसके पास होटल नहीं है, स्पून नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन होटल चलाता है। ओला ओला और उबर, उसके पास टैक्सीज नहीं है लेकिन टैक्सी कंपनी चलाता है। वो क्या करता है, आपकी कार, आपके ड्राइवर, आप हमारे पार्टनर हो, आपको रखकर मैं एक कंपनी चला रहा हूं। दैट इज कॉल्ड गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी का मतलब है, आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं रहेगी, आप एसोसिएटेड लोगों की प्रोडक्ट को रखोगे, उस एसोसिएटेड प्रोडक्ट से आप चलाओगे। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली विल बी अ गिग इकोनॉमी। आने वाले समय में कॉर्पोरेट ऑफिसेस में गिग मैनेजर नाम का एक पोजीशन आएगा। अब उस गिग मैनेजर जो रहेगा, वो कंपनी के लिए जो सामान चाहिए, कंपनी के लिए जो काम चाहिए, उसकी कॉन्ट्रैक्ट लेगा और बाहर के आदमी से करवा के लेगा और कंपनी को देगा। इस तरीके से पूरी सिस्टम चलेगी। And that is what going to happen to the gig manager. स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। एक चीज याद रखिएगा, टेरेस जो आज तक यूज नहीं हो रहा था, वो बड़े पैमाने में यूज होना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन कोचिंग और टीचिंग बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है। मैं आपके साथ ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ या कोचिंग कर रहा हूँ। मेंटल हेल्थ केयर टेकर्स लाइक साइकोलॉजिस्ट, उनकी नौकरियां बदलेगी, वो बड़े पैमाने पे आएंगे। वेलनेस और हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर अलग है, वेलनेस अलग है, इसका एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपको एक छोटी सी सवाल पूछूं, भारत में कितने इंश्योर्ड है, कितने लोग इंश्योर्ड है, कितने % लोग इंश्योर्ड है, तो कोई कहेगा 10, 15, 20, 50, 25, जो भी कहेगा। हकीकत यह है, मात्र 6% इंश्योर्ड है। कोरोना वायरस के बाद इंश्योरेंस के बारे में सोच बढ़ी है लोगों के पास, तो इंश्योरेंस की कंपनी बहुत बड़े तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि आप अकेले रहते हो, घर में अपने लोगों के साथ रहते हो। गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी, एफिलिएट मार्केटिंग बढ़ेगी, यानी कि आपके प्रोडक्ट को अगर मैं पसंद करता हूं तो मैं उसको मार्केट करूंगा, मेरी प्रोडक्ट को आप अगर पसंद करते हो तो आप उसको मार्केट करोगे। एफिलिएट मार्केटिंग, सीइंग अदर पीपल्स प्रोडक्ट विल इंक्रीज। डेटा साइंस बढ़ेगा, मशीन लर्निंग बढ़ेगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बढ़ेगा। साथ साथ में स्पिरिचुअल सोच भी बढ़ेगा। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, गोइंग बैक टू रूट्स, प्रार्थना, प्राणायाम, योगा, स्पिरिचुअल चीज भी बढ़ेंगे। ये सारी चीज विनिंग इंडस्ट्री रहेगी। अगर आप इन शोरूम के साथ में जुड़े हुए रहेंगे तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगा। आपको 10 चीज जो आप कर रहे थे पहले, उसको आप छोड़ना पड़ेगा। पहला चीज था, एक स्टूडेंट होने के नाते आप लक पे बहुत डिपेंड करते थे। नहीं, अभी लक काम नहीं करेगा, सोच काम करेगा। स्टडीज पे पोर्शन को स्किप करते थे आप, वो नहीं कर सकते। आपको सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पोर्शन कहां से आएगी इसकी कोई आपको गुंजाइश नहीं है। बस आपको हर चीज को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई वॉमिट करने के लिए मत पढ़िएगा, मगअप एंड वॉमिट करने के लिए मत पढ़िएगा, समझने के लिए पढ़िएगा। कोई भी सब्जेक्ट को हेट मत कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी सब्जेक्ट कब काम आएगा। जैसे एक क्रिकेटर सारे 6 बॉल को खेलने की कोशिश करता है, वैसे खेलना पड़ेगा। कोई एक आधा बॉल को टुक टुक करके नहीं कर सकते। आपको सारे के 6 बॉल, यानी कि 6 अगर सब्जेक्ट आपके पास, सारे 6 सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट बैड हो गया, इसका मतलब दूसरे सब्जेक्ट सब बैड हो जाएंगे। ये जो कॉन्फिडेंस शेक होती थी आपकी, वो नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करके कुछ नहीं होता है। आपको निर्मल जी बताएंगे आपको बढ़िया। वो कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करके कुछ नहीं होता है, माइंड मैनेजमेंट करके होता है। टाइम तो ऑलरेडी मैनेज्ड है, 24 घंटे के ऊपर एक भी सेकंड नहीं है, वो तो मैनेज्ड है। आपको समझना पड़ेगा इस 24 घंटे में करना क्या है, क्योंकि आपके पास अगर 24 घंटा है, रतन टाटा के पास भी 24 घंटा ही है, मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटा ही है, सबसे बड़े रिच प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स के पास भी 24 घंटा ही है। टाइम इज ऑलरेडी मैनेज्ड।
आपको माइंड मैनेज करना पड़ेगा। कभी आप निर्मल जी से बात करोगे तो ही विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज माइंड मैनेजमेंट, तो ही विल टेक द गुड क्लास फॉर यू गाइस sometime when you want it from him. So it is not a time loss but an opportunity loss. कभी ये मत सोचिए अरे यार अगला महीना देख लेंगे, अगला हफ्ता देख लेंगे। टाइम लॉस नहीं है, अपॉर्चुनिटी लॉस। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आज होती है वो कल नहीं होगी। जो अपॉर्चुनिटी आज रहेगी, फॉर एग्जांपल ये साल अगर आप पास नहीं हुए तो ये साल हो सकता है कि 200 जॉब अपॉर्चुनिटी हुआ होगा। अगले साल जब पास होंगे हो सकता है कि जॉब ओपनिंग जो रहेगी वो 200 से कम होकर 120 हो जाएगी। तो 80 का तो अपॉर्चुनिटी गया ना आपका। हो सकता है 400 भी हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन कम हो गई तो अपॉर्चुनिटी लॉस। इट इज नॉट टाइम लॉस, रिमेंबर दैट। परसेप्शन ड्रिवन डिसीजन मत लीजिएगा कभी भी जिंदगी में। जैसे मैंने आपको कहा ना, इतने लोग ट्रेन में जाते हैं तो 60% जाते होंगे, नहीं। आप फैक्ट शीट को सामने में रखकर बात कीजिएगा। MBA PGDM का मतलब है फैक्ट शीट के साथ रहना, नंबर के अलावा कभी बात नहीं करना। मैं आपको एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट देता हूं, आप लोग सोच लीजिएगा। मैं अगर आपको पूछूं सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है, आप सब लोग बोलोगे चाइना, सही आंसर है। फिर बोलूंगा सेकंड कंट्री कौन सा है, तो आप सब लोग बोलोगे इंडिया, वो भी सही आंसर है। अगर मैं ये पूछ लूं थर्ड कंट्री कौन है, तो आप नहीं बता पाओगे, अधिकांश लोग नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 ही मालूम था, उसके अलावा नहीं मालूम था। अगर आप पढ़ाई करते समय 19.5% of the world population stays in China, 17.4% stays in India, and 4.5%, which is the third largest country, which is US, उसमें 4.5% है। अगर इस परसेंटेज के साथ याद रखोगे तो आपको कभी भी गलत परसेप्शन नहीं आएगा, आपके साथ फैक्ट शीट होंगे। आप ये बोल रहे हो, आप निर्मल को पूछ लीजिएगा, मैं खड़े खड़े आपको कम से कम 10 कंट्री तो बोल सकता हूं परसेंटेज के साथ में। क्यों? पढ़ा उस तरीके से। तो आपको पढ़ाई उस तरीके से करना चाहिए, परसेंटेज के साथ में, नंबर के साथ में, फैक्ट शीट के साथ में। बॉस बिल्कुल नहीं डरना, दुनिया वैसे के वैसे ही है। वो लोग जो कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं, चेंज करते रहने दो। अपने को पढ़ाई उस तरीके से करना चाहिए चेंज वर्ल्ड में फिट होने लायक। और फाइनली एक चीज है, लैक ऑफ सेल्फ मैनिफेस्टेशन। आप लोगों के अंदर बहुत जल्दी नेगेटिवली वायर्ड चीजें जल्दी आती है, और ये प्रॉब्लम है। कोई ये नहीं कहता है अरे ये अपॉर्चुनिटी है, कोई नहीं कहता ये। अगर आप वो सेल्फ मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दोगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू विन ओवर। आई हैव टेकन 15 minutes मोर देन द टाइम अलॉटेड with everybody। मैं ये स्टोरी नहीं बोल रहा हूं, मैं एक क्विकली एक चीज को कर देता हूं। आप कहो कि भाई सॉरी, ये सर्कल के अंदर अगर पूरा दुनिया का नॉलेज है तो आपके पास कितना नॉलेज है? मैं पूछता हूं लोगों को, लोग कहते हैं हमारे पास एक डॉट है। यस, एक डॉट का मतलब यू नो व्हाट यू नो, ठीक है। तो फिर मैं पूछता हूं तो बाकी क्या है? बाकी बोलते बाकी मैं नहीं जानता हूं। मैं बोलता हूं बाकी जो नहीं जानते उसका साइज भी इतना ही है जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है, उतना ही है। ये है यू नो व्हाट यू डोंट नो। तो बाकी क्या है? बाकी ये है, आप हैरान हो जाओगे ये समझ के, बाकी वो चीज है जो आप जानते ही नहीं कि आप जानते नहीं। यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, ये चीज है। जब इस चीज को इंक्रीज करोगे, जब आपको मालूम ही नहीं है कि ऐसी चीज है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अगर कोई चीज को कहूं कि भाई ऑटोमोबाइल डॉक्टर, भाई ऑटोमोबाइल डॉक्टर ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। क्यों? एक आदमी आएगा, कार को चेक करेगा, वो एक प्रिस्क्रिप्शन निकालेगा, कार में कमियां क्या है वो लिख कर रख के चला जाएगा। उसको मैकेनिक होने की जरूरत नहीं है, वो काम नहीं करेगा, वो डॉक्टर है। किसका? ऑटोमोबाइल का। आपको लग रहा है ये प्रोफेशन, आप मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, गूगल कर लीजिएगा, इट्स अवेलेबल इन बॉम्बे, ऑटोमोबाइल डॉक्टर। आप जानते हो, और एक पोजीशन बताता हूं, नाइफ कंसल्टेंट, चाकू का कंसल्टेंट। कौन है वो? चाकू का कंसल्टेंट आर द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ स्किन कंसल्टेंट। पीपल हु डू स्किन कंसल्टेंसी हैव अपग्रेडेड देमसेल्फ टू नाइफ कंसल्टेंट। क्या करते हैं वो लोग? वो आपके स्किन की टेक्सचर,
स्किन की कलर, स्किन की स्मूथनेस को देखकर ये तय करते हैं कि किस डॉक्टर के चाकू के नीचे आपको जाके सर्जरी करनी चाहिए। और वो ऑपरेशन का 15% रेवेन्यू वो लेते हैं, क्योंकि आपको वो सही डॉक्टर के पास जाने की सलाह देते हैं। ये प्रोफेशन को आपने सुना भी नहीं होगा। दैट मीन्स व्हाट? यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। आपको मालूम ही नहीं है कि आपको मालूम नहीं है कि ऐसा भी कोई डॉक्टर है। दिस इज व्हाट द न्यू वर्ल्ड इज। आपको उन सारे चीजों की जानकारी होनी चाहिए जो जानकारी आपको लगता है कि भाई ये मेरे को मालूम नहीं था, आज मेरे को मालूम हुआ। और जितनी जानकारियां आप अपने अंदर असेंबल करोगे, उतनी जानकारियां ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाकर आपके लिए नॉलेज बनेगा, और आप उस नॉलेज से इस दुनिया को जीत सकते हैं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं, आप जैसे यंगस्टर्स लोग अगर ठान लोगे तो 100% अच्छा करोगे। ये सवाल कभी नहीं पैदा होता कि आप पढ़ कहाँ रहे हो। आप अगर जयपुर में पढ़े हो, मैं उससे भी बहुत गया बीता एक छोटा सा गांव में पढ़ा हूं। मेरा गांव कोई बड़ा गांव नहीं है, आश्रम है, सेवाग्राम आश्रम, छोटा सा आश्रम, गांधी जी का आश्रम था, वहां पढ़ा हूं। कोई गलत नहीं हुआ मेरे साथ में। अगर नॉलेज पाना है तो हम उस जमाने में हम लोग लाइब्रेरी में जाते थे। आज तो लाइब्रेरी आपके हाथ में है। बस मेरा एक ही आग्रह है, कान आंख खोल के रखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन आती है आने दीजिएगा, उसको प्रोसेस कीजिएगा। जो अच्छा लगता है उसको इस हार्ड ड्राइव में स्टोर करके रखिएगा, जो अच्छा नहीं लगता है उसको उठाकर आप फेंक दीजिएगा। बस वो कर लोगे तो आपकी सक्सेस आपके कदमों में है। My best wishes to all of you. Thank you, Miss Jessie John, and thank you, Nirmal, for bringing me on the system. And I hope I delivered what I need to actually, give everybody the best that I can give. Over to Miss Jessie John for continuation of this program, or to Mr. Nirmal Bhatnagar. Thanks a lot, sir, for this wonderful session. It was actually a mesmerizing session. Each and every example that you have given to us was having its own learning. So we are thankful to you, sir, for this wonderful session. And I'm sure that all the faculty members and the students and other participants, they have achieved a lot. And rather than achieving something, they have developed a new perspective with respect to how we can remain positive even in this negative situation. Each and every word that was given by you was full of knowledge and full of inspiration, motivating us to be positive irrespective of the situation. And I'm pretty much sure that all of us will try to emerge as thoughtful leaders, because a simple idea can make a big change in the society. Thanks a lot, sir, for this wonderful session. Thanks a lot for sparing your valuable time with our students and all other participants. Nirmal sir, also thank you for all the coordination that you've done from your side. Thank you, sir, and have a good day. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am.